Hello, students. Hello, everyone. So, I feel that all of you have completed your EIT test and you have done it very beautifully. So, this is my internal feeling because, as per the 11th syllabus is concerned, we have solved so many questions from all the syllabus which we have given for the EIT 4. Okay, may it be as the anatomy of flowering plants, or plant kingdom, animal kingdom, cell unit, and apart from that, we have also completed the first chapter, that is living world and biological classification. So these were clear, and I hope you have done your EIT 4 very beautifully. So there were some questions which you might feel as tricky or you might find them difficult. So these type of questions I have taken here and we'll discuss them, we'll solve them together. Okay. So meanwhile, if you have any doubts, you can ask to your particular teacher. Okay. So as this is a recording, otherwise I would have told you to ask me directly. Yeah. So let's move ahead and start with the discussion. So question and answer discussion, that is EIT 4. Okay. So let's move ahead and start. All right. So this is the first question, that is 101. So what it says, match list 1 and list 2 and choose the correct answer for the options given below. Okay. So here are the list 1 and 2. You have to match them accordingly and also you have to choose the option which one is correct. Okay. So I'm going to give you like 30 seconds. After 30 seconds, we are going to discuss it. Okay. So take your time. You have already solved it. Okay, you have already solved it and you have done it very beautifully. I just want those students who have found it difficult, will do that. Okay, so I want your concentration here. All right. So I feel like you have got your answer in your mind. Okay, so let's see which one is the answer. Okay, so let's move ahead to the solution and let's discuss that. All right, so leucoplast and the chromoplasts. Okay, so there are two categories, whereas we call them as leucoplast and chromoplast. So what are chromoplasts? Chromoplasts are those plastids which show some coloring. Okay, so chroma represents to coloring. Okay, those are the coloring plastids. Okay, these are chromoplasts. Apart from that, there is another type of plastids. We call them as leucoplast. The leuco itself represents it is a colorless. Okay, colorless plastids. So colorless plastids are nothing but leucoplasts. So these leucoplasts, so what is their function? If you ask me, ma'am, हाँ, chromoplast में तो chloroplast आता है. Okay, which is a pigment containing plastid. Okay, that is chlorophyll हो गया या फिर carotenoid हो गया. All those are pigment containing plastids. But compared to the leucoplast, they doesn't have any pigment. Then what is their function? Their function is to store the nutrients. Okay, and there are three major types of leucoplast. The first one is aleoplast. Okay, aleoplast is the type of plastid which stores oil and fat. ठीक है, ऑयल और फैट को स्टोर करता है. Aleuroplast, alluro represents protein. If you remember, alluron layer, we have studied this. Okay, so in maize or in monocots, you have seen this alluron layer in the seeds of monocots. Okay, that is a proteinaceous layer. So here alluro represents protein. So this alluroplast represents the storage for protein. Okay, amyloplast, it stores starch. Amylo represents carbohydrates. Please remember, amylo represents carbohydrates. Okay, so carbohydrates have mono, di, okay, poly. So all those polysaccharides, disaccharides, monosaccharides, and there is a different one, that is a starch. So starch is nothing but a polysaccharide. Okay, so this starch is made up of amylopectin and other components. ठीक है, वो सारे हैं, but वो हमको जरूरत नहीं है. The word amylo, what I'm trying to say here is that represents the carbohydrates. ठीक है, so amyloplast stores the starch. Here, chloroplasts are the plastids that contain chlorophyll or carotenoid pigments that are necessary for photosynthesis. We all know this.
है ना। तो अब यहाँ पे विल कम बैक हियर यू विल सी अमाइलोप्लास्ट इज नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट विच गिव्स द कलरिंग एजेंट विच माइट बी क्लोरोफिल और carotenoid pigments, है ना। So aleuroplasts are nothing but proteins and elioplast would be oil and fats. So now you can choose your answer. A2, so C or D we are going to cancel. Then 2 3, okay, 2 3, so B is cancelled. A is your answer. Okay, so 101 A is the answer. I hope this is clear to everyone. All right. So there is a next question on the screen. So this is called, assertion and reasoning question. So how do you solve an assertion and reasoning question? Here they have given the direction. First, you read the assertion and reason carefully to mark the correct option out of the options given below. Okay, so you have to read the both statements, assertion and reason. You have to read both the statements. After reading the statements, whichever the option is given, you have to find the appropriate one. Clear? So let's see the assertion sentence. High temperature destroys the enzymatic activity. Reason. Okay, this sentence ka reason here they have given. Enzymes are proteins, hence they get denatured at high temperature. Options are, if both the assertion and reason are true, the reason is a correct explanation of the assertion. If the both assertion reasons are true, but the reason is not the correct explanation of assertion. If the assertion is true, but the reason is false. If the assertion is false, but the reason is true. Okay, so these are your options, A, B, C, D. You have to choose among them. All right, so I'll give you only 15 seconds because this is a very easy question. Okay, still some students might get confused here, and I don't want anyone to get confused here. Okay, take some time, like 15 seconds, then we are going to discuss it. Sorry. Okay, let's come back here. So what do you know about enzymes? Okay, enzymes are made up of proteins. There is a sentence, okay? All enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes. So please do remember them. ठीक है, सारे enzymes proteins है, but सारे protein enzymes नहीं है. ठीक है, तो enzymes are mostly proteins that catalyze the biochemical reaction. कोई भी एक biochemical reaction हो रहा है तो उसको catalyze करता है, मतलब उसका जो metabolic rate जो है, उसका जो rate of reaction उसको बढ़ाता है. Okay, metabolic rate अगर if it is happening in a life containing organism और या फिर कोई भी फिजिकल केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है. बट एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग बीइंग्स एंड दे कैटलाइज द मेटाबॉलिक रिएक्शंस. ठीक है, तो प्रोटीन्स से बने हैं हमारे एंजाइम्स एंड दे कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, मतलब इंड्यूस करता है रेट ऑफ रिएक्शन को. द कैटालिटिक रिएक्शन अकर्स थ्रू स्पेसिफिक रीजन दैट इज एक्टिव साइट वेयर सबस्ट्रेट बाइंड. ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ ली हैं. ठीक है, सब लोगों को पता है एक एंजाइम होता है. ओके, एंजाइम के ऊपर एक होता है एक्टिव साइट. तो इस एक्टिव साइट के ऊपर आके एक सबस्ट्रेट अटैच होके बैठता है. ठीक है, तो ये है सबस्ट्रेट, ये है एंजाइम और इस पोजीशन को हम कहते हैं एक्टिव साइट. ठीक है, तो ये स्पेसिफिक रीजन है. हर एंजाइम के लिए स्पेसिफिक एक्टिव साइट होता है और उस एक्टिव साइट के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है. सो देयर इज अ स्पेसिफिसिटी बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट. ठीक है, चलो, तब एंजाइम्स शो हाईएस्ट एक्टिविटी एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर. देखो बेटा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तब भी क्या होता है, एंजाइम्स एक्टिव होते हैं और ज्यादा से ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस शो करते हैं. बट उसका एक लिमिट होता है. आप कब तक हीट करते जाओगे? आप अगर ज्यादा हीट करोगे तो प्रोटीन जो है बेटा वो डीनेचर हो जाता है. हाईएस्ट टेम्परेचर में एंजाइम्स खराब हो जाते हैं. आई विल गिव यू बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड. आवर एग, ओके, आवर एग मतलब द एग वी ईट ऑफ द चिकन. ठीक है, तो चिकन का अंडा होता है, उसमें आप देख लो देर आर टू पार्ट्स, व्हाइट प्रोटीन पार्ट, ओके, एल्बुमिन, एंड देयर इज अ योक, एग योक. तो जो एल्बुमिन होता है वो कम्प्लीटली प्रोटीन होता है. जब आप उसको गर्म तवे में डालते हो तो वो डीनेचर होके अभी ऑमलेट बन गया. अब आप उसको वापस नहीं कर सकते. आप नहीं ऐसे कह सकते कि हाँ मैम मैं ऑमलेट से फिर एग बनाऊंगा. नो, इट इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है, तो इसी तरीके से वो प्रोटीन है डीनेचर हो गया हाई टेम्परेचर में आने के बाद. तो यहाँ भी वही होता है. तो कब तक there is an optimum temperature for every enzyme, like nearly it ranges from 40 to 45 degree Celsius.
ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर यहाँ पे देखो, हाई हीट डिस्ट्रॉयज एंजाइम्स. एंजाइम्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट गेट डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर. हाई हीट ब्रेक्स हाइड्रोजन एंड आयोनिक बॉन्ड्स लीडिंग टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ एंजाइम शेप. तो एंजाइम का जो है वो शेप बदल जाता है, तो डीनेचर हो जाता है. एंजाइम लूजेस इट्स एक्टिविटी एंड कैन नो लॉन्गर बाइंड टू इट्स सबस्ट्रेट. ठीक है, अपनी शेप बदल देता है, उसकी एक्टिविटी मर जाती है, एंड ये कभी भी फिर सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं कर सकता. ठीक है, नाउ सर्टेन एंजाइम सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया एंड आर्किया दैट ग्रो एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर और कॉल्ड थर्मोस्टेबल. ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं बैक्टीरिया या फिर आर्किया जो हाई टेम्परेचर्स में भी जिंदा होते हैं, एंड वो कुछ सर्टेन एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो थर्मोस्टेबल होते हैं, मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर में भी वो मेंटेन होते हैं एंड वो बैक्टीरिया जिंदा भी रहता है. ठीक है, सो दे आर एक्टिव इन द टेम्परेचर्स इवन अबव 80 डिग्री सेल्सियस, देखो डबल द टेम्परेचर, एंड दे आर कॉल्ड हाइपरथर्मोफिलिक एंजाइम्स. फॉर एग्जांपल, थर्मोफिलिक लाइपेज इज एक्टिव एट हाई 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 टेम्परेचर. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया. Sorry. So here let's discuss high temperature destroys enzymatic activity. This is true. But how or why? Enzymes are proteins. They get denatured at high temperature. Even the reason is correct, assertion is correct. So option A would be correct. So A would be your answer. ठीक है, मतलब assertion भी correct है, reason भी correct है, and जो reason है वो correct explanation है assertion का. Clear? We'll move ahead then. There's a next question on the screen. Read the following statements and answer the question. Okay. It has a sclerenchymatous hypodermis, a large number of scattered vascular bundles, and a large parenchymatous ground tissue. Vascular bundles are conjoint and collateral. Peripheral vascular bundles are generally smaller, and the central ones are located larger. Okay. So जो लार्जर होते हैं सेंट्रल वन, साइड वाले पेरिफेरल वाले छोटे होते हैं. फ्लोएम पैरेन्काइमा is absent. Water containing cavities are present within the vascular bundles. Okay. So which plant anatomy is being described by the above statements? Dicotyledonous root, monocotyledonous root, dicot stem, monocot stem. ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू जस्ट 15 सेकेंड्स. 15 सेकेंड्स बहुत ज्यादा है इसके लिए. ठीक है, अगर आपने कैरेक्टर सही से पढ़े हैं, ओके, तो बहुत इजी है, otherwise it is difficult. Okay, so here what you need to understand is, देखो बेटा, this question belongs to chapter anatomy of flowering plants. So anatomy of flowering plants में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम याद कैसे रखें, how to remember such things. We find it very difficult. So you should read by comparing. ओके, कंपेयर करके पढ़ो. जैसे मोनोकॉट रूट में क्या हो रहा है, मोनोकॉट स्टेम में क्या हो रहा है. ओके, तो डाइकॉट स्टेम में क्या हो रहा है, मोनोकॉट स्टेम में क्या हो रहा है. तो ऐसे जब कंपेयर कर करके आप कैरेक्टर्स पढ़ोगे ना, तो इट विल स्टिक इन योर माइंड. बहुत इजीली आप याद रख सकते हो, इतना डिफिकल्ट फील नहीं होगा आपको. ठीक है, तो कंपेयर एंड स्टडी. ओके, तो वैस्कुलर बंडल्स कैसे हैं, ठीक है, डाइकॉट में कैसे हैं, डाइकॉट स्टेम में कैसे हैं, और मोनोकॉट स्टेम में कैसे हैं, ये सारी चीजें. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे आगे जाके देखते हैं. सो हियर यू विल बी सीइंग द कैरेक्टर्स. तो पहला कैरेक्टर क्या था, स्क्लीरेनकाइमा का हाइपोडर्मिस है. देखो, दिस इज हाइपोडर्मिस मेड अप ऑफ स्क्लीरेनकाइमा. स्क्लीरेनकाइमा आर दोज permanent tissue which are live on birth but their protoplasm becomes dead. So eventually जो स्क्लीरेनकाइमा है उनको हम कहते हैं डेड सेल्स विदाउट प्रोटोप्लास्ट. ठीक है, सो स्क्लीरेनकाइमाटस एपी हाइपोडर्मिस है. ठीक है, एंड देन लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स. ठीक है, सो वास्कुलर बंडल्स जो है देखो बहुत ज्यादा नंबर है और इधर उधर स्कैटर हुए हैं. ठीक है, और इनके बीच में यहाँ पे जो पैरेन्काइमा का ग्राउंड टिश्यू है. ठीक है, वास्कुलर बंडल्स के इधर उधर सब जगह पे ग्राउंड टिश्यू है, दैट इज पैरेन्काइमा. ठीक है, तो ये क्लियर है. देन वास्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड. प्लीज डू रिमेम्बर देयर आर टू टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल्स. तो वास्कुलर बंडल्स में फर्स्ट वन इज रेडियल. ठीक है, जब आप रेडियल देखते हो, ये यूजुअली यू सी दिस इन रूट्स. ठीक है, दूसरा जो है वो कॉन्जॉइंट होता है. कॉन्जॉइंट आप देखते हो स्टेम में. ठीक है, तो रेडियल में आप देखोगे फिर एक्सार्क और एंडार्क. ठीक है, यहाँ पे आप फिर एक्सार्क देखते हो. ओके, एक्सार्क देखते हो. सो यूजुअली एंड देयर इज एन अनदर टाइप एंडार्क. ठीक है, तो आपको स्टेम में क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको एंडार्क देखने को मिलेगा.
ओके, दिस एंडार्क एंड एक्सार्क आर द अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट इनसाइड अ वैस्कुलर बंडल दैट रिप्रेजेंट्स, ठीक है। तो रेडियल में क्या होता है बेटा, रेडियल में देर आर सेपरेट पैचेस ऑफ जाइलम। ओके, तो सेपरेट पैच ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम होता है, सेपरेट पैच ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। मैम कैसे? देखो बेटा, ये स्टील रीजन है, तो यहाँ पे जाइलम है, और बीच में यहाँ पे होगा फ्लोएम, तो इसको हम कहते हैं रेडियल। ओके, रेडियल वैस्कुलर बंडल। तो अब एग्जैक्ट में क्या होता है, एग्जैक्ट में ये होता है बेटा, जो प्रोटोजाइलम है, जो प्रोटोजाइलम है वो पेरिफेरी रीजन में होता है। ओके, जो प्रोटोजाइलम है वो पेरिफेरी में होता है, एंड जो मेटाजाइलम है वो सेंट्रल रीजन में होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो बड़ा बड़ा मेटाजाइलम बीच में होगा, छोटा छोटा प्रोटोजाइलम साइड में होगा। सो दैट वुड बी एग्जैक्ट। कमिंग टू कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट में भी दो टाइप होते हैं बेटा, एक होता है कोलैटरल, दूसरा होता है बाइकोलैटरल। ओके, सो कोलैटरल एंड बाइकोलैटरल, ये सब आपको पता ही है ना। बाई कोलैटरल, तो कोलैटरल में क्या होगा, जाइलम एंड फ्लोएम एक ही बंडल में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोएम या फिर जाइलम होगा, यहाँ पे जाइलम, यहाँ पे फ्लोएम, ठीक है। ये होगा, अगर इनके बीच में केम्बियम है तो ये ओपन है। जब इनके बीच में केम्बियम नहीं है, केम्बियम एब्सेंट है, सिर्फ जाइलम एंड फ्लोएम है, तो इनको हम कहते हैं क्लोज। तो कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, ओपन और क्लोज्ड, ठीक है। तो बाइकोलैटरल कैसे होता है, बाइकोलैटरल में दो पैचेस के फ्लोएम होते हैं और एक पैच का जाइलम, देन टू केमियम, ठीक है। ये इसको कहते हैं हम लोग बाइकोलैटरल। एंड ये एंडार्क क्या होता है, एंडार्क में देखो बेटा कुछ ऐसे होता है, आई शो यू, कुछ ऐसे होता है। साइड में मेटाजाइलम होते हैं, जाते 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 छोटा होता है प्रोटोजाइलम, ठीक है। तो यहाँ पे केम्बियम होगा और यहाँ पे फ्लोएम होगा, ठीक है। सो लाइक दिस मेटाजाइलम, यहाँ पे मेटाजाइलम जो है वो पेरिफेरी में है। ओके, मेटाजाइलम जो है वो पेरिफेरी में है, एंड प्रोटोजाइलम जो है वो सेंटर में है, ठीक है। सब कुछ रेड रेड हो गया, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैस्कुलर बंडल्स के बारे में हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, क्लोज्ड, जिसका मतलब है इसमें केम्बियम सेपरेशन के लिए नहीं है, ठीक है। देन पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर, जो साइड वाले हैं वो छोटे हैं, बीच वाले जो है वो बड़े हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है, ठीक है, यहाँ पे देख लो साइड वाले छोटे हैं, ओके, दे आर स्मॉलर, जो बड़े है वो बीच में है, ठीक है। और इनके जो वैस्कुलर बंडल्स में है, इनमें वाटर कैविटी होती है, देखो ये होता है ये कैविटी ठीक है। और यहाँ पे केम्बियम, आप देखो केम्बियम प्रेजेंट नहीं है, एंड इट लुक्स लाइक अ ह्यूमन स्कल, ठीक है। ये मोनोकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल है, आप कैरेक्टर्स देखते ही बता सकते हो कि ये मोनोकॉट स्टेम है, ठीक है। आंसर इज डी हियर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, एक तो आप यहीं पे बता सकते हो, फर्स्ट सेंटेंस से ही बता सकते हो कि स्क्लेरेंकाइमाटस हाइपोडर्मिस एंड स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल हमेशा जो है स्टेम में वो जॉइंट होते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। ये एपिडर्मिस हो गया, फिर एंडोडर्मिस आ गया, तो ऐसे 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 होते हैं, एक सर्कुलर रिंग में होते हैं, फिर यहाँ पे केम्बियम होता है, तो ऐसे कुछ होता है ये, ठीक है। तो दो आर डाइकॉट, यहाँ पे स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स हैं, तो ये मोनोकॉट ही हो सकता है, ठीक है। आप देखो, आप वैस्कुलर बंडल्स जो है वो साइड में छोटे हैं, बीच में मोटे हैं, तो इन सब कैरेक्टर्स आप देखोगे तो ये सारा मोनोकॉटिलिडन स्टेम का इंडिकेशन है, ठीक है। चलो, coming to next question, fill in the blanks in the below statements by choosing the correct option। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके यहाँ पे हमको देना है, ठीक है, सेंटेंस पढ़ के। सो व्हाट इज द सेंटेंस, इन मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन when each of the steps is catalyzed by the same enzyme complex or different enzyme, it is called dash pathway। In our skeletal muscle, under anaerobic conditions, dash is formed. In yeast, during fermentation, the glycolytic pathway leads to the production of what? These are your options. I'm going to give you 15 seconds, क्योंकि वो बस हैं, काफी हैं, तो आप मुझे अभी दिमाग में रखो कौन सा ऑप्शन है, फिर देखते हैं, विल डिस्कस इट। This question is directly taken from NCERT, ठीक है। आप पूछोगे मैम, नहीं मैम,
हाँ मैं बोलूंगी यस। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, a multi-step chemical reaction when each of the steps is catalyzed by the same enzyme or different enzyme is called as metabolic pathway. इसको कहते हैं हम मेटाबॉलिक पाथवे। इसका एग्जांपल दो मैम, व्हाट इज मेटाबॉलिक पाथवे? द बेस्ट एग्जांपल इज ग्लाइकोलाइसिस। ओके, ग्लाइकोलाइसिस। तो यहाँ पे देखो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो दो हिस्सों में बट जाता है। ठीक है, अगर ये 6 कार्बन का है तो यहाँ पे पायरुविक एसिड बनता है और दो पायरुविक एसिड बनेंगे, ठीक है, या फिर दो पायरुवेट बनेंगे। तो एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट बने, और ये जो बनता है ना, इसका जो सारा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, so this example is actually a metabolic pathway in which glucose becomes pyruvic acid through 10 different enzymes catalyzing metabolic reactions। ठीक है, तो ये हो गया एक metabolic pathway, ये फर्स्ट आंसर। सेकेंड, in our skeletal muscle under anaerobic conditions lactic acid is formed। देखो बेटा, जो भी हम ग्लूकोज खाते हैं, ओके, उस ग्लूकोज को क्या होना है, पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर क्रेब्स साइकिल होगा, फिर ईटीएस होगा, देन इवेंचुअली आपको सारे एटीपीस मिलेंगे। एंड एटीपी इज दैट एनर्जी करेंसी थ्रू विच यू यूटिलाइज। ओके, एनर्जी आपके बॉडी के अंदर जाके यूटिलाइज होती है। बट कई बार ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं जब आपने एक्सरसाइज ज्यादा कर लिया, आप समझ लो आप बोलोगे मैं एक महीने में 5 kg वेट लूज करूंगा, और आप कहते हो कि अरे जोर से धक्का लगा के आप एक्सरसाइज करते हो, भागते हो, कूदते हो, स्किपिंग करते हो, तो अब क्या होगा, आपके बॉडी में ज्यादा से ज्यादा एटीपी की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। क्यों? आप रिगोरस एक्सरसाइज करते हो। ऐसे केसेस में एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होके एनारोबिक कंडीशन में वो शिफ्ट हो जाता है। और एनारोबिक कंडीशन में क्या होगा, एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड से आपको इवेंचुअली एटीपीज मिलते हैं। ओके, तो यूजुअल कंडीशन में, एरोबिक कंडीशंस में पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ अब ह्यूमंस का हो गया, तो ईस्ट में क्या होता है, इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, मेटाबॉलिक पाथवे है, तो सी और डी को हटा दिया, बी और बी को हटा दिया। मेटाबॉलिक पाथवे करेक्ट है। इन स्केलेटल मसल में एरोबिक नो एसिटिक एसिड नहीं, तो ए को भी हटा दिया। मेटाबॉलिक पाथवे लैक्टिक एसिड एथेनॉल, डी इज योर आंसर। ठीक है, डी आपका आंसर है। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो, देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। 113, the curve given below shows enzymatic activity with relation to three conditions: pH, temperature and substrate concentration. What do the two axis x and y represent? ठीक है, ये जो x एंड y है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो x एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है? x एक्सिस एंजाइमेटिक एक्टिविटी, टेम्परेचर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, pH temperature, enzymatic activity, substrate concentration, enzymatic activity. I'll give you 30 seconds. ठीक है, I'll give you 30 seconds. दिमाग लगाओ। अगर आपने ये आई टी के बाद भी अगर आपको डिफिकल्ट लगा होगा तो आप सॉल्व करने की कोशिश किए होंगे, अगर नहीं तो अब हम करेंगे, डिस्कशन करेंगे इसका। ओके, ओके, चलो यहाँ पे देखते हैं। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, सबको पता है, मैंने अभी भी बताया एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। बट दीज एंजाइम व्हाट दे डू, एक्सिलरेट्स, आई टोल्ड यू राइट, दे इंड्यूस, दे स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, है ना? सो इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी दैट कन्वर्ट्स रिएक्टेंट्स टू सेपरेट। अब देखो बेटा होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ। देखो एक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट से सबस्ट्रेट बनना होता है। ठीक है, तो ये है हमारा रिएक्शन। अब क्या होगा, अगर रिएक्टेंट से सबस्ट्रेट जल्दी बन गया तो एक्सेलरेट होगा, लेट बन गया तो अब क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो अब क्या होगा, जो रिएक्टेंट से सबस्ट्रेट बनता है ना, इसके लिए कुछ एनर्जी लगता है, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये कितनी लगती है, समझो कुछ लगती है, कुछ अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी लगता है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब ये एक्टिवेशन एनर्जी को जरूरी है ताकि रिएक्टेंट से सबस्ट्रेट बने। अब हम क्या करेंगे, इस पे डालेंगे एंजाइम्स। जब एंजाइम डालेंगे तो तब क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी और रिएक्टेंट से सबस्ट्रेट बहुत जल्दी बन जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे सबस्ट्रेट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एनर्जी से प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो अब क्या होगा, रिएक्टेंट से यहाँ पे सबस्ट्रेट्स बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ से यहाँ तक इतनी है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ई ए। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को हमने यहाँ पे ई ए पे इंडिकेट किया है। चलो, अब ये है विदाउट एंजाइम। ठीक है, विदाउट एंजाइम हर रिएक्शन के लिए इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। अब मैं क्या करूंगी, मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क करूंगी, मैं ऐड करूंगी एंजाइम। जब मैं एंजाइम ऐड करूंगी तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी जरूरत नहीं है, थोड़ी भी चल मिले तो काफी है। ठीक है, जब हम एंजाइम डालेंगे तो कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी से आपको सबस्ट्रेट मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, द ये तो हो गया दूसरी चीज, द इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंजाइम्स विच फर्दर एक्सेलरेट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, एक तो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम एक्सेलरेट कर रहा है। दूसरा, आप थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ा दोगे ना तो काइनेटिक एनर्जी जो है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी बढ़ गया है एंजाइम से, और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे देख लो, फर्दर एक्सेलरेट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। मतलब टेम्परेचर हायर देन ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। मैंने बताया ना, ऑप्टिमम टेम्परेचर 40 to 45 डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्टिमम है समझो। इसके ऊपर आपने टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, आप अब मतलब क्या कहते हैं, आप स्वार्थी हो गए। आप बोलोगे कि अगर मैं ज्यादा टेम्परेचर कर दूंगा तो जल्दी जल्दी एंजाइम्स ज्यादा जल्दी अपना काम करेंगे और मुझको सबस्ट्रेट जल्दी मिल जाएगा। नहीं, देखना पड़ता है। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर चला गया तो सारी आपकी जो खिचड़ी बननी है वो फिर चिड़ा बन जाएगा, पता नहीं क्या बन जाएगा। तो इसीलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर आपको टेम्परेचर नहीं करना है। ठीक है, सो एंजाइम का यूज करो, एंजाइम को और इंड्यूस करने के लिए टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाओ। 40 के ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि एंजाइम्स पेप्टाइड बॉन्ड्स के बने होते हैं, वो डीनेचर हो जाता है, मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं, एंड एंजाइम का सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है एंजाइम का वो चेंज हो जाता है। तो सारा कुछ प्रॉब्लम वहीं पे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देख लो, 40 में ऑप्टिमम टेम्परेचर, इससे ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे देख लो, एक्स एक्सिस में टेम्परेचर होगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्सिस में होगा टेम्परेचर एंड वाई एक्सिस में होगा आपका एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ये कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक्स एक्सिस में टेम्परेचर, पहले वाई एक्सिस देख लो। वाई एक्सिस में टेम्परेचर बिल्कुल नहीं, वाई एक्सिस में पीएच बिल्कुल नहीं, वाई एक्सिस में एंजाइम एक्टिविटी हाँ हो सकती है, वाई एक्सिस में एंजाइम एक्टिविटी हाँ। अब एक्स एक्सिस देख लो, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल नहीं, सी इज द आंसर। ठीक है, चलो, नाउ देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, देखो बेटा, क्वानोसाइट्स किस कहाँ आप देखने को मिलते हैं, क्वानोसाइट्स विल बी सीन इन पोरीफेरा। ठीक है, तो पोरीफेरा में क्या होगा, जो अंदर का ऑस्कुलम होता है उसके लाइनिंग में होते हैं क्वानोसाइट्स। दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वाटर करंट। ठीक है, तो वाटर का करंट बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए जो इंटरनल कैविटी होती है स्पॉन्जोसील, वहां पे बने होते हैं। ठीक है, ऑस्टिया के थ्रू अंदर आएगा, स्पॉन्जोसील में आपको ये मिलेंगे क्वानोसाइट्स, एंड देन ऑस्कुलम के थ्रू पानी बाहर जाएगा। ठीक है, नीडोब्लास्ट जो है ये आपको सीलेंटरेटा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फ्लेम सेल्स जो हैं ये आपको प्लैटीहेल्मिन्थस में देखने को मिलते हैं, नेफ्रीडिया अनेलिडा में, कूम सेल्स विल बी इन टीनोफोरा। ठीक है, तो ये है। अगर आपको इसमें एक भी पता चल जाए तो आपका आंसर इजी होगा। तो ए आर, ये तो पता है ना, ये आर, अच्छा यहाँ पे ए आर। ओके, सो ए आर है, बी एस है, हाँ बिल्कुल सही, सी पी है, हाँ बिल्कुल सही, डी टी है, हाँ भाई, ई क्यू। ओके, सो योर आंसर इज डी। अब यहाँ पे देख लो, तो प्रेजेंस ऑफ क्वानोसाइट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरा। तो क्वानोसाइट्स लाइन द बॉडी कैविटी और द स्पॉन्जोसील ऑफ द स्पॉन्जेस, मैंने अभी भी आपको बताया। नीडोब्लास्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सीलेंटरेटा, दे हेल्प। ओके, नीडोब्लास्ट जो है वो हेल्प करते हैं एंकोरेज में, डिफेंस में, एंड कैप्चरिंग ऑफ प्रे, इनमें होते हैं नीडोब्लास्ट। ठीक है, नीडोब्लास्ट जो है वो होते हैं। ठीक है, तो वो आपको रहेंगे ना, हेल्प करेंगे एंकरेज एंड डिफेंस में।
कैप्चरिंग ऑफ प्रे में भी, ठीक है। देन प्रेजेंस ऑफ कूम प्लेट्स, ओके, कूम प्लेट्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीनोफोरा। ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, ठीक है। यूजुअली 8 कूम प्लेट्स होते हैं, ओके, ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। नाउ फ्लेम सेल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लैटीहेल्मिंथस, जो ऑस्मा रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो एनालिड्स जो है वो सेगमेंटेड एनिमल्स हैं जिनमें पेयर ऑफ नेफ्रीडिया होता है, तो वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर डी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन। मेराइन विथ स्ट्रीमलाइंड बॉडी, cartilaginous endoskeleton, mouth ventral, candle fin is heterocercal, notochord is persistent throughout the life. Above characters belong to how many of the following organisms? ठीक है, आपको कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो चूज करने से पहले आपको देखना चाहिए जो कैरेक्टर्स दिए हैं ये कौन से क्लास को बिलोंग कर रहे हैं या फिर कौन से फाइलम को बिलोंग कर रहे हैं, तब आपको ये चूज करने में बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। आई विल गिव यू 30 seconds. They have given dogfish, sawfish, flying fish, fighting fish, anglefish, jellyfish, starfish, trigon, torpedo, rohu, काटला, magu, ठीक है। देखो समझो, मेराइन विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, मैं बताऊं ना कि ये एक ही आपके लिए बहुत बहुत इजी है समझने के लिए। एंड नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, बिल्कुल ठीक है। माउथ वेंट्रल है, मेराइन, ये दो जो कैरेक्टर्स हैं ये बहुत इजीली आपको रिकॉग्नाइज करा सकते हैं कि ये कौन से क्लास और कौन से फाइलम का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, तो यहाँ पे देखो जो भी कैरेक्टर्स दिए हैं दे बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा एंड क्लास कॉन्ड्रिक्टिएस, ठीक है। ये अगर पता चल गया तो आपको एग्जाम्पल्स पता लगाना बहुत इजी है, ओके। तो कॉन्ड्रिक्टिएस कौन है, ये है बेटा कार्टिलेजिनस फिशेस, यही तो यहाँ पे दिया था, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन और कार्टिलेजिनस फिशेस। फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास कॉन्ड्रिक्टिएस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो कितने यहाँ पे फिशेस दिए हैं, उनका सारा एक्सप्लेनेशन दिया है। देखो फ्लाइंग फिश, फाइटिंग फिश, एंगल फिश, रोहू, काटला, मांगुर, दीज आर बोनी फिशेस, ओके, ये सारे बोनी फिशेस हैं, ठीक है। तो इनको आप हटा दो साइड में। देन जेलीफिश बिलोंग टू फाइलम सीलेंट्रेटा, ये बिल्कुल मतलब ये मतलब कॉर्डेटा में ही नहीं आता, तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते। और स्टार फिश भी ये फाइलम एकाइनोडर्मेटा, ये तो दूसरा ही मतलब ग्रुप का है। तो यहाँ पे देख लो जो फ्लाइंग फिश, फाइटिंग फिश, एंगल फिश, रोहू, काटला एंड मागुर है, ये बोनी फिशेस हैं। और बाकी जो बचे हैं यहाँ पे देखो, डॉग फिश, सॉ फिश, ट्राइगॉन एंड टॉर्पीडो, ये हैं आपके कॉन्ड्रिक्टियस के या फिर कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है। तो कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4, ठीक है, 4 है। तो आप यहाँ पे देखो 4 वुड बी द आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर, ठीक है। इजी था, बहुत इजी था। फिर भी आप कंफ्यूज हो जाते हो, नहीं होना है क्योंकि एग्जाम्पल्स को याद रखना है। देखो एनिमल किंगडम जो चैप्टर है ना, ये सारा आपकी मेमोरी के ऊपर बेस्ड है। आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, आपको कैरेक्टर्स याद रखने हैं। ये आप कंपैरेटिवली जब आप समझ के देख के स्टडी करते हो ना तब बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज इसमें कुछ इतना बड़ा मैकेनिज्म नहीं है बेटा, कुछ भी मतलब हेवीली आप इसको याद रखने वाला, बस ये मेमोरी बेस्ड चैप्टर है। आपको याद रखना है कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल्स, बस। आपको क्वेश्चंस भी उन्हीं में आते हैं, एग्जाम्पल्स में ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 132। X and Y are the components of binomial nomenclature. The naming system was proposed by Z. The first letter of X is always capitalized while Y starts with small letter. Identify X, Y, Z. बहुत इजी है, इसको टाइम देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। टाइम देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फिर भी चलो 5 सेकंड दे देती हूँ, क्यों आपको बुरा लगे, 5 सेकंड ले लो। चलो सारे बच्चों को आंसर दिमाग में छप गया, अब देखते हैं। जो कैरोलिस लीनियर्स हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस किया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम फॉर साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेमिंग के लिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को कैरोलिस लीनियर्स ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो ये सिस्टम है कैसा,
ये है देखो बेटा, इसमें बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में दो नेम होते हैं, देखो बाई रिप्रेजेंट्स टू, नॉमिल नॉमिनल, बाइनोमियल, बाइनोम, अच्छा ये ऐसे है। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग, दो नाम का नेमिंग, ठीक है। तो चलो ऐसा होता है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट लेटर है वो जीनस कहलाता है, जो सेकंड लेटर है वो स्पीशीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट कहलाता है। और जो जीनस है उसका स्टार्टिंग लेटर होता है कैपिटल, एंड जो स्पीशीज है उसका स्मॉल लेटर होता है फर्स्ट लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, मैंजिफेरा इंडिका विच इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, ठीक है। तो फर्स्ट इज जीनस, सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। किसने किया, कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, तो नेमिंग सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस। तो एक्स वुड बी जीनस, इतना याद रखो बेटा, एक्स जीनस है, वाई स्पीशीज है, जेड इज कैरोलस लिनियस, ठीक है। क्योंकि उसी ने प्रपोज किया ना, इसीलिए। तो ये तो रॉन्ग हो गया। हाँ ये हो सकता है, ये भी नहीं, ठीक है। अब देखो, जेनरिक नेम, स्पेसिफिक नेम, एपिथेट, हाँ ठीक है, लेकिन आर एच व्हिटेकर, नो भाई, आर एच व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, बिल्कुल नहीं। तो डी आपका आंसर है कि 132 क्वेश्चन का आंसर इज डी। बहुत इजी था। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 135, मैच कॉलम वन विथ कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। इसके लिए थोड़ा टाइम लो, देखो समझो। अगर आप बहुत चालाक हो ना, अगर आप स्मार्ट हो, तो इसके लिए भी टाइम ज्यादा जरूरत नहीं है। देखते हैं यहाँ पे, कैटेगरी कॉलम वन पिगमेंट्स, टर्पिनॉइड्स, अल्कलॉइड्स, लेक्टिन्स। कॉलम टू में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ओके। कॉनकानावालिन, मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, मॉर्फिन, कोडिन, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसायनिन्स, ठीक है। टेक सम टाइम। ओके, चलो आई गेस आप लोगों ने आंसर को दिमाग में बिठा लिया है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है। सबसे पहले, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस लाइक अमीनो एसिड्स ऑन प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट आर यूज्ड इन डे टू डे फंक्शन ऑफ द सेल। तो बेटा, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो हैं जो हमारे रोजमर्रा के चीजों के लिए जरूरत में आते हैं। जैसे अमीनो एसिड्स हो गया, प्रोटीन में हेल्प होता है। देन नाइट्रोजन बेसिस जो आपके डीएनए में बने होते हैं, उसका काम रोज रोज का होता है, ठीक है। देन फिर कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ये सारे जो हैं ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। इनके अलावा आपके बॉडी में कुछ और भी बने हैं, ओके। अदर देन दैट ऑफ अदर देन दैट, plant and fungi have different molecules like alkaloid and pigments. इनके अलावा भी कुछ और प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स और फंगाई में, जो उनको हम कहते हैं अल्कलॉइड्स एंड पिगमेंट्स। दीज आर कंसिडर्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इनका फंक्शन अभी भी ठीक से हमें पता नहीं लगा है क्यों है, लेकिन ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये बहुत हेल्पफुल है हम ह्यूमंस के लिए। है तो प्लांट्स और फंगाई में, ठीक है। क्यों है अभी तक पता नहीं चला, कुछ लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिगोरसली वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये हम ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो पिगमेंट्स देख लो बेटा, पिगमेंट्स में आपको क्या देख रहा है यहाँ पे, कैरोटीनॉइड एंड एंथोसायनिन दोनों ही पिगमेंट्स हैं, ठीक है। देन अल्कलॉइड्स में आप क्या देखोगे, मार्फिन एंड कोडिन। टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन एंड डाइटर्पिन्स। एसेंशियल ऑयल्स में लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन में एब्रिन एंड रिसिन। लेक्टिन्स में कॉनकानावालिन ए। ड्रग्स विनब्लास्टिन, कुर्कुमिन। पॉलीमर में रबर, गम्स एंड सेल्यूलोज, कि ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। ये आपको चार्ट में दिया है आपकी एनसीईआरटी में। अब देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख के अगर कुछ भी नहीं पता ना, देखो बेटा ये तो सबको पता होगा, टर्पिनॉइड्स, टर्पिन्स, मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स। अब बी टू देख लो, तुम कहाँ पे है बी टू, हाँ यहाँ पे है, इनमें सारे में नहीं है, तो आपका आंसर मिल गया। अगर आपको दूसरा पता भी है या नहीं है तो भी, देखो पिगमेंट तो बेटा कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसायनिन है। अल्कलॉइड्स कौन है, अल्कलॉइड्स है मॉर्फिन एंड कोडिन। जो लेक्टिन्स हैं ये है कानकानावलिन, ठीक है। तो ए इज योर आंसर। कितना इजी था, कितना सिंपल था, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ओके। सो क्वेश्चन 144, examine figure given below and select the right option in which structures are identified correctly, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिया है, कुछ लेबलिंग दी है, उनका जो लेबलिंग है उसका करेक्ट लेबलिंग हमको चूज करना है,
ठीक है, सो देर इज अ स्ट्रक्चर हियर, देर इज अ स्ट्रक्चर हियर, एंड यहाँ पे देख लो ABCD। ओके, आई एम गिविंग यू 30 seconds, टेक सम टाइम। हाँ, तो अब चलो देखते हैं डिस्कशन में। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज डी बता रहा है, बट यहाँ पे देखो क्या है। ओके, तो जो ए है ना बेटा, वो लीफ प्राइमोडियम है। जो ए है वो है लीफ का प्राइमोडियम। आई होप यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमोडियम। प्राइमोडियम इज नथिंग बट इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ प्रिमिटिव स्टेज। ठीक है, प्राइमोडियम सबसे पहले होता है, और प्राइमोडियम के बाद कोई भी एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो प्राइमोडियम क्या है बेटा, एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमोडियम। ठीक है, तो लीफ बनने से पहले उसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं लीफ प्राइमोडियम। तो बी जो है ना बेटा, इसको हम कहते हैं सैम। कि बी को हम कहते हैं सैम। मैम व्हाट इज सैम? शूट एपिकल मेरिस्टम। देखो बेटा, ये शूट एपिकल मेरिस्टम है, और ये शूट सिस्टम है जो ग्रो हो रहा है। ठीक है, ये शूट एपिकल मेरिस्टम है। समझ में आ रहा है? ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा आपको देखना है, जो ये साइड में आया है ना, इसको हम कहते हैं एक्सिलरी बड। ठीक है, ये क्या है? ये है एक्सिलरी बड। एंड जो सी है, ये है बेटा वैस्कुलर बंडल्स। मतलब ये आगे जाके वैस्कुलर टिश्यू बनाएगा। ठीक है, ये आगे जाके क्या बनाएगा? वैस्कुलर टिश्यू बनाएगा। ठीक है, आगे जाके अब क्या हो रहा है, ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है, टिश्यू बनने की प्रोसेस में है अभी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो कौन से आपके ऑप्शंस करेक्ट है। लीफ प्राइमोडियम जिसमें किसी में नहीं है उसको हटा दो। ठीक है, ए में लीफ प्राइमोडियम, हाँ भाई दोनों में है। सैम शूट एपिकल मेरिस्टम, इसमें एक्सिलरी बट बिल्कुल नहीं, तो डी इज योर आंसर। तो यहाँ पे देख लो, बी शूट एपिकल मेरिस्टम, सी एक्सिलरी बट, डी डिफरेंशिएटिंग वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो उसका फंक्शन थोड़ा बहुत। लीफ प्राइमोडियम, दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच विल फॉर्म न्यू सेल्स, पता है ना? तो न्यू लीव्स, सॉरी सेल्स बताया मैंने, लीव्स। तो लीव्स बनने से पहले वाला स्ट्रक्चर है लीफ प्राइमोडियम। ठीक है, shoot apical meristem, it is a generated above ground aerial, above, these are ground aerial organs throughout the lifespan of the higher plants। ठीक है, ये रहेगा जब तक प्लांट ग्रो होता रहेगा। प्लांट ग्रो होने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है शूट एपिकल मेरिस्टम। जिस प्लांट में शूट एपिकल मेरिस्टम नहीं है वहां पे आप ग्रोथ ही नहीं देखोगे कोई भी प्लांट का। ठीक है, देन एक्सिलरी बड, these are the precursors of branch and lateral shoot, it is formed at the junction between leaf and stem। Okay, so it will form a branch or a lateral shoot, and it is present in between the leaf and stem. This is axillary bud. Okay, so D would be differentiating vascular tissue. So vascular tissues are made up of xylem and phloem and are differentiated from meristematic cells, that is prochemium and vascular chemium. Okay, so vascular tissue यहाँ पे हो गया. Now your answer is D. I hope this is clear. Okay, so there's a next question on the screen. Question 145. With reference to external features of cockroach, which among the following statement is not correct? With reference to external features of cockroach, कौन सा statement correct नहीं है? Body is covered by chitinous exoskeleton. Hind wings are protective and are not useful in flight. Forewings or elytra. Gonapophysis help in copulation. ठीक है, बहुत easy question है। ले लो 10 सेकेंड, ले लो, सोच लो, समझ लो, क्यों है, क्यों नहीं है, कैसा है, कब है, क्यों है, सब कुछ। ओके, अगर देखो आपने एग्जाम में आंसर किया होगा ना, तो 2 सेकेंड की भी बात नहीं है आपको जानने के लिए कौन सा ऑप्शन है। अगर आपने क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व किया तो मुश्किल फाइंड करोगे, तो तब तो अब मुश्किल ही होगा, डिस्कशन में समझ आएगा। तो चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना बेटा, बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये तो सही है, दिस इज करेक्ट, सबको पता है कॉकरोच के पास काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। दूसरा स्टेटमेंट, जो हाइंड विंग्स है वो फ्लाइट में यूज नहीं है कह रहा है, बट नो, दीज आर यूजफुल इन फ्लाइट्स, ये यूजफुल है फ्लाइट्स में, तो ये नॉन करेक्ट है।
ठीक है। फोर विंग्स और एलिट्रा ये भी सही है। गुनापोफाइसिस हेल्प्स इन कॉपुलेशन ये भी सही है। तो आपका आंसर बी होना चाहिए, बट यहाँ पे आप देख लो क्या दिया है सोल्यूशन में। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम मीसोथोरैक्स। हाँ, ये फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स मीसोथोरैक्स से निकल रहे हैं, बिल्कुल सही है। ओके। देन सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेटाथोरैक्स, ठीक है। और जो फोर्थ थोरैक्स हैं वी कॉल देम एज टेगमिना, ठीक है। दीज आर ओपेक एंड डार्क लेदरी, ठीक है। लेदरी होते हैं, डार्क होते हैं, ये कवर करते हैं इन हाइंड विंग्स को। ओके जब ये रेस्ट में होते हैं तो हाइंड विंग्स को कवर होते हैं टेगमिना से, हाइंड विंग्स आर कवर्ड बाय टेगमिना, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो हाइंड विंग्स हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं बेटा, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, एंड दे आर यूज्ड इन फ्लाइट, ठीक है, तो फ्लाइट में यूज होते हैं। समझ आ रहा है? तो आपका करेक्ट आंसर इज हाइंड विंग्स आर प्रोटेक्टिव एंड आर नॉट यूजफुल इन फ्लाइट। ये है आपका रॉन्ग स्टेटमेंट, इसीलिए करेक्ट आंसर है कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसीलिए आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज अगेन असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड इज कंसीडर्ड प्योरेस्ट इन द वर्ल्ड। Reason: protoplast of Plasmodium is differentiated into an outer enucleated and central nucleated portions. ठीक है, ये वही है। असर्शन रीजन करेक्ट है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, असर्शन असर्शन रीजन करेक्ट है तो एक्सप्लेनेशन गलत है, बी है। असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है, असर्शन गलत है, रीजन गलत है, सब गलत। ठीक है, तो दीज आर फोर ऑप्शंस। अब टाइम ले लो, समझ के सोच के आंसर बताओ। ओके आगे चलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये बता रहा है, देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन देखो। The vegetative part of the slime mold does not have cell wall. They either occur as free living amoeboid mass of protoplasm, we call them as plasmodium, or aggregate of amoebae, we call them as pseudoplasmodium. ठीक है, जो स्लाइम मोल्ड है, ठीक है, उसका वेजिटेटिव पार्ट में सेल वॉल ही नहीं होता। वो दो तरीके से जिंदा रह सकता है, या तो एग्जिस्ट कर सकता है एक फ्री लिविंग अमीबॉइड की तरह विच इज प्लाज्मोडियम, या फिर अग्रीगेट ऑफ अमीबॉइड दैट इज सूडोप्लाज्मोडियम। ठीक है, इन दोनों तरीके में ये जिंदा रह सकता है, सेल वॉल बिल्कुल नहीं है। अब द प्रोटोप्लाज्म ऑफ स्लाइम मोल्ड इज कंसिडर्ड एज प्योरेस्ट इन द लिविंग वर्ल्ड बिकॉज इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर इन्यूक्लिएटेड हैलोप्लाज्म एंड सेंट्रल न्यूक्लिएटेड पोर्शन। ठीक है, तो ये जो है असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ये, डेफिनेटली है ना। तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो बहुत सिंपल है, ये वुड बी योर आंसर। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 160। The given diagrams show stomatal apparatus in dicots and monocots. Which one is correct option for ABC? They have given here stomatal apparatus in dicot and monocot. ठीक है, जो फर्स्ट वाला है वो मोनोकॉट है, जो सेकंड वाला है वो डाइकॉट है। बट आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग। आपको लेबलिंग देखना है ABC। आई विल गिव यू 15 to 20 seconds. टेक सम टाइम एंड पिक आउट द आंसर। ओके, मैंने एनफ टाइम दे दिया है, अब चलो हम लोग देखते हैं। ये है बेटा, ये मोनोकॉट, ये है डाइकॉट, देखते हैं हम लोग। ओके, स्टोमेटा है क्या चीज? स्टोमेटा आर स्मॉल टाइनी पोर्स कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप्ड सेल्स कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। ओके, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे। ओके, इनको हम बुलाते हैं गार्ड सेल्स। ओके, विच एनक्लोज स्टोमेटल पोर, ठीक है, जो स्टोमेटल पोर है इनको एनक्लोज करके होते हैं गार्ड सेल्स। Stomata are mostly present in epidermal cells of leaves and other aerial parts like young stem and floral parts. ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा? लीफ में होते हैं, दैट टू एपिडर्मल लेयर, मतलब बाहर की जो एपिडर्मल लेयर होते हैं वहीं पे होते हैं। ठीक है, एंड दे हेल्प इन ट्रांसपिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अगर एक्सेस वाटर हो गया है प्लांट के अंदर तो उसको बाहर फेंकता है। और
क्या कहते हैं, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं उनमें भी स्टोमेटा हेल्प करता है, ठीक है। स्टोमेटा कुछ टाइम में ओपन होता है, कुछ टाइम में क्लोज्ड भी होता है। नाउ सो एंग्स, एंग लीव्स में, सॉरी, हाँ, एंग स्टेम में होंगे और लीव्स में तो होंगे ही होंगे, देन सम पार्ट ऑफ फ्लोरल के फ्लावर में, ठीक है। नाउ गार्ड सेल्स इन डाइकॉट्स आर किडनी शेप, इन डाइकॉट्स दे आर किडनी शेप, इन मोनोकॉट्स दे आर डम्बल शेप। ओके, डम्बल यूजुअली होता कैसे है, ऐसे होता है डम्बल। मगर जो लड़के उठा के वो करते हैं ना बॉडी बिल्डिंग, दिस इज डम्बल, ठीक है। नाउ द गार्ड सेल्स में बी सराउंडेड बाय वेरिंग नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स, वी कॉल देम एज सब्सिडियरी सेल्स और एक्सेसरी सेल्स। देखो बेटा, एक चीज याद रखो, ये स्टोमेटल पोर है, इसके सराउंडिंग में गार्ड सेल है, इसके सराउंडिंग में एपिडर्मल सेल्स के मॉडिफाइड सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल और एक्सेसरी सेल। इसके सराउंडिंग में मतलब जितने भी सेल्स होंगे, जो कुछ भी होगा, ये सारे हैं कौन, ये सारे हैं बेटा एपिडर्मल सेल्स, क्योंकि एपिडर्मिस लेयर में है स्टोमेटा, तो सारे कौन होंगे, एपिडर्मल सेल्स ही तो होंगे ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो आप, ये क्या कहला रहा है, ए इज एपिडर्मल सेल, ठीक है, ए इज एपिडर्मल सेल, बी, जो आपका बी है वो सब्सिडियरी सेल है, ठीक है। ए एपिडर्मल सेल, बी सब्सिडियरी सेल, और सी जो है वो गार्ड सेल है। ए एपिडर्मल सेल, ए, हाँ, ए एपिडर्मल सेल हो गया, बी सब्सिडियरी सेल, हाँ बिल्कुल, सी जो है वो गार्ड सेल है। ओके, तो योर आंसर इज डी, ठीक है, आपका आंसर जो है वो डी है। एपिडर्मल सेल हो गए साइड्स के, उसके गार्ड सेल के सराउंडिंग में बी, ओके, दैट इज सब्सिडियरी सेल्स, सी गार्ड सेल, और ये हो गया आपका स्टोमेटल पोल, ठीक है। ये डाइकॉट का है और ये मोनोकॉट का है, बीन शेप्ड है यहाँ पे, डम्बल शेप में है गार्ड सेल्स, ठीक है ना। Coming to next question, match the column 1 with column 2. You have to match the column 1 with column 2. So column 1 says Homo sapiens, Mangifera indica, Musa domestica, Triticum aestivum. Column 2 Primata, Poales, Sapindales, Diptera. Okay, तो इसके ऑर्डर से आपको मिलाना है, इस ऑर्गेनिज्म के ऑर्डर से मिलाना है आपको। ठीक है, थोड़ा टाइम ले लो, मैच करो, तब तक मैं भी दिमाग में मैच करती हूँ। I have given you one hint. 2 हिंट, बाकी आप करो, क्योंकि वो करने से तो आंसर मिल जाएगा ना। चलो, ओके, 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 लेट्स सी हियर। ओके, सो हाउस फ्लाई जिसको हम कहते हैं मक्खी, ओके, मक्खी, तो म्यूसा डोमेस्टिका इज अ फ्लाई ऑफ ऑर्डर डिप्टेरा, ठीक है। तो हाउस फ्लाई इज एन इंसेक्ट विद द वाइडेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो हाउस फ्लाई इज म्यूसा डोमेस्टिका विद डिप्टेरा एज द ऑर्डर। ट्रिटिकम एस्टिवम इज नोन एज ब्रेड व्हीट, या फिर गेहूं आप जो कहते हैं वो ट्रिटिकम एस्टिवम है। अ कल्टिवेटेड व्हीट स्पीशीज ऑफ ऑर्डर पोएल्स फैमिली पोएसी, ठीक है। Mangifera indica, commonly known as mango, a species of flowering plant of order Sapindales, family Anacardiaceae. It's an a native Indian subcontinent. Okay, चलो, Homo sapiens, Homo human species है, it belongs to order primates and family Hominidae. ठीक है, इतना सिंपल था, है ना, इतना सिंपल था। तो अब आप मुझे बताओ, ओके, सो कौन है म्यू, म्यूका डोमेस्टिका इज डिप्टेरा, फिर मैंजिफेरा इंडिका इज सैपिंडेल्स। तो आप बताओ, A1 हो गया, हाँ भाई इसको हटा दो। D4 हम, सॉरी, हाँ D2 देखा था हम लोगों ने, तो अभी इसको हटा दो। तो C4, हाँ तो इसको हटा दो, आपका ऑप्शन जो है वो सी है, ठीक है। तो 163 का आंसर जो है वो सी है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 172, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द गिवन प्रोटीन स्ट्रक्चर, फर्स्ट अमीनो एसिड, लास्ट अमीनो एसिड, एक्स वाई। तो यहाँ पे देख लो, आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा एन टर्मिनल अमीनो एसिड है और कौन सा सी टर्मिनल अमीनो एसिड है, ओके। एक अमीनो एसिड में या फिर एक प्रोटीन में, समझो एक प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसमें अमीनो एसिड में कौन सा टर्मिनल किधर होता है, ठीक है, ये देखो, फर्स्ट एंड लास्ट। आई एम गिविंग यू 20 seconds.
Okay, I have given enough time. Let's see the answer. A peptide has two ends. ठीक है, पेप्टाइड इज नथिंग बट प्रोटीन. जब भी हम लोग पेप्टाइड की बात कहते हैं तो वो प्रोटीन है बेटा. एज सिंपल एज दैट. इट हैज टू एंड्स. इसके पास दो एंड्स होते हैं. द एंड विथ फ्री अमाइनो ग्रुप इज कॉल्ड एज एन टर्मिनल अमीनो एसिड. ओके, तो एन टर्मिनल अमीनो एसिड रेसिड्यू वो कौन सा है जिसमें फ्री अमीनो एसिड का ग्रुप है या फिर फ्री अमाइनो ग्रुप है. ठीक है. द एंड ऑफ द फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप इज कॉल्ड एज सी टर्मिनल अमीनो एसिड रेसिड्यू. एंड पेप्टाइड्स आर नेम्ड फ्रॉम एन टर्मिनल एसिड रेसिड्यू टू सी टर्मिनल एसिड रेसिड्यू. ठीक है, जहां पे कार्बोक्सिल है उसको सी टर्मिनल कह लो, यहाँ जहां पे अमाइनो ग्रुप है वहां पे आप एन टर्मिनल कह लो. ठीक है. तो while representing the primary structure of protein, the N-terminal amino acid is always written on the first. ये याद रखो, फर्स्ट या फिर लेफ्ट. ठीक है, तो एन टर्मिनल कहाँ पे होता है? पहले होता है और लेफ्ट में होता है. ओके, लेफ्ट एंड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन. एंड सी टर्मिनल इज एट द राइट एंड ऑफ द चेन. तो यहाँ पे देख लो, लेफ्ट में कौन सा है? एन टर्मिनल है या फिर फर्स्ट समझ लो आप. एंड लास्ट में कौन है? सी टर्मिनल है, दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप. यहाँ पे अमाइनो ग्रुप, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप. एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल. तो फर्स्ट में कौन होगा? फर्स्ट में होगा एन एंड लास्ट में कौन होगा? सी. ठीक है, तो एक्स एन है, एक्स एन, एक्स एन. ठीक है, और जो लास्ट है वो सी है. हाँ ये सी. हाँ ओके, तो ए इज द आंसर. 172 में कौन सा आंसर है? ए इज द आंसर. बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना. कुछ यहाँ पे डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो अपने टीचर्स को. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, तो फर्स्ट एन टर्मिनल, लास्ट सी टर्मिनल, अमाइनो एन, कार्बोक्सिल सी. ठीक. Match the column 1 with column 2. Choose the correct option. Okay, column 1 says bulliform cells, pericycle, endark xylem, exarch xylem, bundle sheath cells. Column 2, initiation of lateral roots, roots, grasses, dicot leaf, stem. Okay, don't get confused here. Confused नहीं होना है. वक्त लो, देखो कॉलम 1 में कौन है, कॉलम 2 में कौन है, उसके हिसाब से आप आंसर करो. ओके, आई होप आपने चूज कर लिया कौन सा है ऑप्शन. अब डिस्कस करते हैं. बुलीफॉर्म सेल्स कौन है बेटा? बुलीफॉर्म सेल्स आर दो सेल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट्स. ठीक है, मोनोकॉट्स के लीफ में एपिडर्मिस के जो लेयर है वहां पे होते हैं बुलीफॉर्म सेल्स. ये यूजुअली क्या करते हैं, इसमें पानी भरा हुआ होता है. जब पानी भरा हुआ होता है तो ऐसे होते हैं फ्लैट लीव्स. जो पैरेलल वेनेशन के लीव्स होते हैं मोनोकॉट्स में, वो ऐसे फ्लैट होते हैं. जब पानी इसमें नहीं होता बुलीफॉर्म सेल्स में तो ये थोड़ा कर्ल कर जाते हैं. आपने देखा होगा मोनोकॉट लीव्स कभी कभी ऐसे साइड से कर्ल कर जाते हैं. तो वो कर्लिंग जो आपको लीव्स में दिखती है वो दिखती है जब ये बुलीफॉर्म सेल्स में पानी नहीं होता. ओके, सो बुलीफॉर्म सेल्स आर टोटली रिलेटेड विथ ग्रासेस. ठीक है, ये टोटली किससे रिलेटेड है बेटा? ये रिलेटेड है ग्रासेस से. ठीक है, आप समझो. अब पेरिसाइकल, पेरिसाइकल कहाँ होता है? पेरिसाइकल देखो बेटा, सबसे आउटर सरफेस तो एपिडर्मिस होता है, उसके बाद ये एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स के अंदर फिर आपको मिलेगा एंडोडर्मिस रीजन. ठीक है, एंडोडर्मिस. तो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में ये जो पार्ट है ये क्या है? ये है कॉर्टेक्स रीजन, ये है कॉर्टेक्स. तो एंडोडर्मिस के जो अंदर वाला एक लेयर ऑफ सेल्स होता है जिनको हम कहते हैं पेरिसाइकल. के पेरिसाइकल कहते हैं. तो ये जो पेरिसाइकल है ये क्या काम कर रहा है? ये हेल्प कर रहा है इन द इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स. के लैटरल रूट्स के इनिशिएशन में मेन कौन काम कर रहा है? पेरिसाइकल. ठीक है, तो A3 हो गया तो इनको हटा दो. ठीक है, A3 और B1. अच्छा, तो इसको भी हटा दो. अब दूसरा वेरीफाई करो. ठीक है, सो एंडार्क जाइलम, आज ही अभी अभी इसी क्लास में मैंने आपको बताया एंडार्क जो है आप किस में देखोगे? ये देखोगे आप स्टेम्स में. एंडार्क जो है आप स्टेम्स में देखते हो. एक्सार्क कहाँ पे देखते हो? एक्सार्क बेटा आप देखते हो रूट्स में. ठीक है, बंडल शीथ सेल. ओके, बंडल शीथ सेल आपको किस में देखने को मिलेगा? डाइकॉट के लीव्स में. ठीक है, तो डी इज द आंसर. डी बहुत इजी था आपको समझने के लिए, डी आंसर है.
ठीक है, पेरिसाइकल इनिशिएशन लैटरल रूट्स, बुलिफॉर्म सेल्स, एंडार्क, एक्सार्क एंड बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, इसका कुछ मैंने सोल्यूशन नहीं रखा, बहुत इजी है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 184, a segment of DNA has 120 adenine, 120 cytosine bases. The total number of nucleotides present in the segment is, एक डीएनए का सेगमेंट है, उस सेगमेंट में कितने टोटल न्यूक्लियोटाइड्स हैं आपको पता लगाना है। देखिए टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं आपको पता लगाना है, बहुत इजी है। ठीक है, बहुत ही इजी है। बायोमोलिक्यूल्स का आप इग्नोर करते हो ना, मत करो, बायोमोलिक्यूल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एंड बायोमोलिक्यूल्स आपको ट्वेल्थ के लिए एक बेसिक फाउंडेशन है। ओके, ऑलराइट। तो अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो डीएनए जो है बेटा, डीएनए किन चीजों से बना है? डीएनए बना है शुगर, फॉस्फेट, ओके, उसके साथ मिला है नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेसिस में चार बेसिस होते हैं, एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमिडिन एंड साइटोसिन, ये चार होते हैं। ठीक है, ये चार होते हैं। अब क्या होता है डीएनए में, ए टी के साथ ज्वाइन करता है विथ डबल बॉन्ड, जी सी के साथ ज्वाइन करता है विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये तो सब लोगों को पता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये कैसे आंसर होगा? ये होगा बेटा चारगाफ्स रूल से। तो एरविन चारगाफ ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमको दिया चारगाफ्स रूल। तो इनके हिसाब से क्या है भाई, व्हाट इज चारगाफ्स रूल? द अमाउंट ऑफ अडेनाइन इन डीएनए इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ थाइमिन। ओके, अमाउंट ऑफ एडेनाइन जितना है उतना थाइमिन होगा, जितना ग्वानाइन है उतना साइटोसिन होगा। क्यों होगा? मैंने बताया आपको, ए डबल बॉन्ड से टी के साथ जुड़ता है, जी ट्रिपल बॉन्ड से सी के साथ जुड़ता है। अब ए जितना होगा उतना टी होगा, जी जितना होगा उतना सी होगा, ताकि उनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ज्वाइनिंग हो सके। ठीक है ना, द अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ pyridine, आप ऐसे भी स्टेट कर सकते हो या फिर ऐसे भी स्टेट कर सकते हो। ठीक है, बट आपको चारगाफ रूल में दूसरी चीज याद रखनी है, जो अमाउंट ऑफ ए प्लस टी की है उतनी अमाउंट ऑफ जी प्लस सी की नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, द रेशियो वेरीज अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट सेम इन डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द सेम ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये आपको इतना जरूरी नहीं है, रूल 2 आप इसको हटा दो तो भी चलेगा, फर्स्ट सेंटेंस आप याद रखो। ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, तो प्यूरिन्स हैं वो पिरिमिडिन से इक्वल होंगे, एंड ग्वानोसिन ग्वानाइन इज इक्वल टू साइटोसिन, एडेनाइन इज इक्वल टू थाइमिन। तो अब यहाँ पे देखो कितना है, 120 है। तो 120 में आप इसको करो इंटू 4, इंटू 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि 120 एडेनाइन है तो 120 थाइमिन होंगे, तो 120 कितने होंगे, ग्वानोसिन भी होंगे। तो आपका आंसर कौन सा होगा? डी होगा, 480। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, आपको 480 मिलेगा। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 healthy people in their 20s got involved in injury resulting in a damage and death of few cells of the following. ओके, कुछ लोग थे, 4 लोग थे, उनके 20s में है, मतलब 20s की एज में है, इनके पास इनके साथ इंजुरी हुआ, कुछ इनके कुछ सेल्स डैमेज हो गए और कुछ सेल मर भी गए। कौन से सेल्स मरे हैं आपको ऑप्शन से पता लगाना है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द सेल्स आर लीस्टली लाइक टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स? कौन से जो सेल्स मरे हैं ना वो न्यू सेल से रिप्लेस नहीं हो सकते। ओके, जो सेल्स मर गए हैं अब इंजुरी में वो सेल्स रिकवर नहीं हो सकते, वो कौन से सेल्स हैं? बहुत इजी है। ओके, यहाँ पे देख लो, न्यूरॉन सेल्स आर लीस्टली लाइक टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स, दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, आपके बॉडी को सिग्नल्स देता है ब्रेन, एंड आपके बॉडी से सिग्नल्स लेता भी है। ठीक है, एमिट भी करता है फिर वापस लेता भी है, मोटर एंड सेंसरी दोनों ही होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ओके, वो होता है। सो द लॉस ऑफ न्यूरॉन्स रिजल्ट्स इन एन इनबैलेंस इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज। ठीक है, जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो एक बार डैमेज हो गए या मर गए तो उनको रिन्यू करना
मुश्किल है। इसीलिए आप देखे होंगे एक्सीडेंट्स जब होता है तो कई बार लोगों की मेमोरी निकल जाती है, अगर हेड पे मार लगा हो तो मेमोरी नहीं होता, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है, कुछ लोगों को शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाती है। तो बहुत टाइप के डिजीज, और कई बार तो कोमा में भी जा सकते हैं। ठीक है, ये सारे ही पॉसिबल केसेस है, तो आपका आंसर है बी, न्यूरॉन्स। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लेबल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ फिगर दिया है, फिगर 1 एंड फिगर 2, आपको इसके लेबलिंग पता लगानी है। ओके, आइडेंटिफाई द लेबल। आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स, देखो डायग्राम को एंड देन स्टार्ट पुटिंग द प्रेशर टू योर माइंड। ओके, यहाँ पे देखो, ये क्या है बेटा, ये डिवाइडिंग बैक्टीरिया है ना, ये डिवाइडिंग बैक्टीरिया है। ये कौन है, ये है नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया। ओके, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये डीएनए है, ये हेटेरोसिस्ट है, ये म्यूसिलेजिनस शीथ है। ओके, हेटेरोजिनस, सॉरी हेटेरोसिस्ट हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, म्यूसिलेजिनस शीथ हेल्प इन द कीपिंग ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर को बरकरार रखने के लिए इवन इन द स्केर्सिटी ऑफ वाटर। तो ये होते हैं स्ट्रक्चर्स। तो अब यहाँ पे देख लो, ए कौन है, ये है सेल वॉल, बी है सेल मेम्ब्रेन, सी डीएनए है, डी हेटेरोसिस्ट है, ई म्यूसिलेजिनस शीथ है। तो सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है, देन बी सेल मेम्ब्रेन, हाँ दोनों में बी है, सी डीएनए हेटेरोसिस्ट नो, तो यहाँ पे बी है, बट दूसरे भी कंफर्म कर लो, डी हेटेरोसिस्ट, ई मिसलेनियस शीट, सो बी इज योर आंसर। ठीक है, बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। सो आई हैव सॉल्व लाइक 20 क्वेश्चंस, मैंने कुछ 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ओके, विच आई फाउंड लाइक यू माइट फाइंड इट एज अ डिफिकल्ट, बट अगर आपको कुछ भी और क्वेश्चंस में डाउट है, आप अपने पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर्स के साथ आप डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई क्लास एंड लिसनिंग टू दिस क्लास वेरी पेशेंटली। थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट EIT वीडियो। बाय बाय।